Μεταδώστε την είδηση, όχι τον ιό. Spread the news, not the virus. Το Solidarity Now, η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και το pod.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους σε podcast για να σε βοηθήσουν. Άκου πώς μπορείς να προστατευτείς από τον πανικό των fake news στα Ουρντού. خبر پھیلائیں وائرس نہیں. سولیڈارٹی ناؤ اب اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین اور pod.gr پوڈ کاسٹوں کی ایک سیریز کے ذریعے آپ کی مدد کے لیے ان افواج میں شامل ہوں. اردو میں سنیں کہ آپ جعلی خبروں کی گھبراہٹ سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں. خبر پھیلائیں وائرس نہیں. نئے کرونا وائرس کی ترسیل کو کم کرنے کی لڑائی میں ہم سب ایک ٹیم ہیں. ہم باخبر رہتے ہیں, احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں, ہم محفوظ رہتے ہیں اور اپنے آس پاس والوں کی حفاظت کرتے ہیں. کرونا وائرس, گمراہی اور گھبراہٹ جعلی خبروں کو نہیں کہتے ہیں. اس ایپیسوڈ میں ہم نئے کرونا وائرس پر افواہوں اور جعلی خبروں پر توجہ دیتے ہیں. یہ کووڈ-19 کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور کرونا وائرس سے متعلق حقائق کے بارے میں عالمی ادارہ صحت کی رہنمائی کا اشتراک کرتے ہیں. اس ایپیسوڈ میں جب ہم کرونا وائرس کا حوالہ دیتے ہیں تو ہم نئے کووڈ-19 وائرس کا حوالہ دیتے ہیں. WHO ہر عمر کے لوگوں کو مشورہ دیتا ہے کہ وہ معاشرتی دوری, اچھی طرح ہاتھ کی صفائی اور سانس لینے کے عمل حفظان صحت کی پیروی کر کے اپنے آپ کو وائرس سے بچانے کے لیے اقدامات کریں. کرونا وائرس سے کوئی بھی بیمار پڑ سکتا ہے. ہر عمر, قومیت, نسل اور سماجی طبقے کے لوگ کرونا وائرس سے متاثر ہو سکتے ہیں. بوڑھے افراد اور پہلے سے موجود طبی حالات کے حامل افراد جیسے دمہ, ذیابیطس, دل کی بیماری یا وائرس سے ظاہر زیادہ متاثر دکھائی دینے والے ہر عمر کے افراد جو بخار, کھانسی اور سانس لینے میں دشواری کا سامنا کرتے ہیں, انہیں طبی امداد حاصل کرنی چاہیے. کرونا وائرس سے متاثرہ شخص میں ہمیشہ علامات نہیں ہوتی ہیں. ہر کوئی کرونا وائرس میں مبتلا نہیں ہوتا. کچھ لوگ کرونا وائرس سے متاثر ہو سکتے ہیں اور کچھ میں بالکل علامات نہیں ہوتی یا صرف ہلکی علامات. یہاں تک کہ لوگ کرونا وائرس کی انتہائی ہلکی علامتوں والے وائرس کو منتقل کر سکتے ہیں. کرونا وائرس کی عام علامات بخار, خشک کھانسی اور تھکاوٹ ہیں. کچھ افراد کو یہ درد اور تکلیف, ناک کی جکڑن, گلے کی سوزش, اسہال اور اچانک کانپنے یا ذائقہ یا بو محسوس ہو سکتی ہے. یہ علامات عام طور پر ہلکی ہوتی ہیں اور آہستہ آہستہ شروع ہوتی ہیں. زیادہ تر لوگ, تقریباً 80%, اسپتال میں علاج کی ضرورت کے بغیر اس مرض سے ٹھیک ہوئے. کرونا وائرس میں مبتلا ہر ایک میں سے 5 افراد شدید بیمار ہوئے اور انہیں سانس لینے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا. کرونا وائرس گرم اور سرد دونوں موسم میں پھیلتا ہے. اب تک موجود شواہد سے کرونا وائرس دنیا کے تمام خطوں میں پھیل سکتا ہے. دونوں علاقوں میں گرم اور نمی کے موسم اور سرد موسم کے ساتھ آب و ہوا کے لحاظ سے صحت کی رہنمائی پر عمل کر کے
अपने और दूसरों को कोरोना वायरस से बचाना ज़रूरी है। कोरोना वायरस मच्छर के काटने के ज़रिए मुंतकिल नहीं हो सकता। अब तक इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मच्छरों के ज़रिए कोरोना वायरस मुंतकिल हो सकता है। कोरोना वायरस एक सांस का वायरस है जो बुनियादी तौर पर बूंदों के ज़रिए फैलता है। किसी मुतासरा शख्स के खांसने, छींकने या बोलने से ये बूंदें मुंह और नाक से बाहर आ सकती हैं। किसी शख्स के करीब अशिया या सतहों पर जा सकती हैं, जैसे मेज़, दरवाजे का दस्ता और जंगला। लोग इन चीज़ों या सतहों को छूकर अपनी आँखों, नाक या मुंह को छूने से इन्फेक्शन का शिकार हो सकते हैं। इन्फेक्शन की रोकथाम के लिए ये ज़रूरी है कि अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं या अल्कोहल से अपने हाथों को रगड़कर साफ करें। शराब पीना कोरोना वायरस इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करता। शराब का इस्तेमाल कोरोना वायरस से हिफाजत नहीं करता, बल्कि आपके जिस्म को इन्फेक्शन का शिकार बना सकता है। शराब पीना मदाफ़ी निज़ाम को कमज़ोर करता है और मुमकिन इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ आपकी मज़ाहमत को कम करता है। अगरचे अल्कोहल एंटीसेप्टिक्स सतहों पर वायरस को ख़त्म कर सकता है, शराब की मशरूबात का इस्तेमाल आपके जिस्म में वायरस को नहीं मारता है। मावन हज़म में अल्कोहल का इस्तेमाल वायरस को सांस के निज़ाम में दाखिल होने और फैलने से नहीं रोकता है। एंटीसेप्टिक अल्कोहल का इदख़ाल बहुत ख़तरनाक है और ये जहर का सबब बन सकता है। अपनी जल्द पर अल्कोहल या क्लोरीन का छिड़काव करने से कोरोना वायरस नहीं मरता। आपकी जल्द पर अल्कोहल या क्लोरीन का छिड़काव इन वायरसों को नहीं मारता जो आपके जिस्म में दाखिल हो चुके हैं। इस तरह के मादे का छिड़काव कपड़े या रतूबत झिल्ली यानी आँखें, मुंह के लिए नुकसानदेह हो सकता है। आगाह रहें कि अल्कोहल और क्लोरीन दोनों सतहों को जरासीम खुश करने के लिए मुफीद साबित होते हैं, लेकिन इन्हें मुनासिब तजवीज़ के तहत इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। वायरस के इन्फेक्शन से बचने के लिए अपने हाथों को बार बार साफ और आँखों को, मुंह और नाक को छूने से गुरेज करें। कोरोना वायरस खाने के ज़रिए मुंतकिल नहीं होता है। खाने के ज़रिए कोरोना वायरस मुंतकली के कोई इशारे नहीं हैं। सतहों पर वायरस की नाक़िस बक़ा के सबब खाने या पैकेजों के ज़रिए तरसील, जो गुज़िश्ता दिनों या हफ्तों में कमरे के दर्जे हरारत या डीप फ्रीज़र करके संभाले गए हों, इन्हें गैर मामूली समझा जाता है। ताहम कोई शख्स कोरोना वायरस की आलूदगी वाली सतहों को छूने के बाद अपने मुंह, नाक या आँखों को छूने से इस बीमारी का शिकार हो सकता है, हालांकि ये मुंतकली का बुनियादी तरीका नहीं। जरासीम कुश दवा से फल और सब्जियां धोना ख़तरनाक है। फलों, सब्जियों या दीगर खाने की अशिया को धोने के लिए जरासीम कुश दवा का इस्तेमाल महफूज अमल नहीं, क्योंकि इससे जहर आलूदगी या दीगर ख़तरात लाहक हो सकते हैं। खाने की महफूज तैयारी न सिर्फ वबाई बीमारी के दौरान बल्कि आम तौर पर भी जरासीम और वायरस से बचाव। महफूज तरीके से खाना तैयार करने के लिए ज़रूरी है अपने खाने को तैयार करने से पहले
अपने हाथों को कम से कम 20 सेकंड तक साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। फलों और सब्जियों को काटने और साफ करने से पहले काफ़ी मिकदार में बहते हुए पानी से धोएं और इसे साफ कागज़ के तौलिए से खुश्क करें। किसी भी चाकू या कांटे को जो कच्चा गोश्त, समुद्री ग़िज़ा, मुर्गी, अंडे वगैरह पर प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल किया गया हो, इसे खाने से पहले अच्छी तरह धोएं। हर इस्तेमाल के बाद किचन की सतहों और बर्तनों को गर्म साबुन वाले पानी से धोएं। लहसुन को मशरक़ में उतारने से कोरोना वायरस इन्फेक्शन से तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं होता। लहसुन में कुछ एंटी माइक्रोबियल ख़ुसूसियात हो सकती हैं, ताहम इस बात का कोई इशारा नहीं है कि लहसुन की खपत आपको कोरोना वायरस से बचा सकती है। कोरोना वायरस की वबा का ताल्लुक मख़सूस टेक्नोलॉजियों से नहीं है। नज़रियात को बुनियादी तौर से सोशल मीडिया पर दोबारा पेश किया गया है, जो कोरोना वायरस की वबाई बीमारी को 5वीं नस्ल के मोबाइल टेलीफोनी नेटवर्क्स 5G की तरक्की से जोड़ते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि 5G टेक्नोलॉजी जैसी वायरलेस टेक्नोलॉजी की नुमाइश से सेहत के कोई मनफी असरात मुरतब नहीं होते हैं। मौजूदा दवाएं अलामात का इलाज कर सकती हैं, लेकिन कोरोना वायरस का नहीं। अब तक कोरोना वायरस को रोकने या इसके इलाज के लिए ख़ास दवा तजवीज़ नहीं की गई। WHO के मुताबिक अगरचा आम इस्तेमाल के लिए एक वैक्सीन तैयार होने में वक्त लगता है, लेकिन इस वबा से दुनिया भर में वबाई अमराज को कंट्रोल करने में बिल आखिर एक वैक्सीन कारआमद साबित हो सकती है। जब तक कोई वैक्सीन तैयार नहीं की जाती, माशरती दूरी और बार बार हाथ धोने जैसे हिफाजती इक़दामात को वायरस के फैलाव को रोकने के लिए जारी रखने की ज़रूरत है। वायरस से मुतासरा अफराद को अलामात दूर करने और इनके इलाज की मुनासिब देखभाल और शदीद बीमारी वाले अफराद को ज़्यादा से ज़्यादा देखभाल करनी चाहिए। कुछ ख़ुसूस इलाज क्लिनिक ट्रायल्स के ज़रिए तफ्तीश और जांच के तहत हैं। नमूनिया से बचाव के कतरे पिलाने से आप कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ हिफाजत नहीं कर सकते। नमूनिया के ख़िलाफ़ वैक्सीन जैसे निमोकोकल वैक्सीन और हीमोफ्लेक्स इन्फ्लुएंज़ा टाइप B हब वैक्सीन नए कोरोना वायरस से तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकती। अगरचा आम तौर पर ये वैक्सीन कारगर नहीं, लेकिन आपकी सेहत को बचाने के लिए सांस की बीमारियों के ख़िलाफ़ वैक्सीन की सिफारिश की जा रही है। कोविड-19 वायरस इतना नया और मुख्तलिफ है कि इसे अपनी वैक्सीन की ज़रूरत है। एंटीबायोटिक्स कोरोना वायरस को रोकने या इलाज में मदद नहीं कर सकती। एंटीबायोटिक्स वायरस के ख़िलाफ़ काम नहीं करती, सिर्फ बैक्टीरिया पर। कोरोना वायरस एक वबा है, लिहाजा एंटीबायोटिक को रोकथाम या इलाज के ज़राए के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। ताहम अगर आप कोरोना वायरस के लिए अस्पताल में दाखिल हैं तो आपको एंटीबायोटिक्स मिल सकती हैं, क्योंकि बैक्टीरियल शरीक इन्फेक्शन मुमकिन है। हमें सोशल मीडिया की पोस्टों पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। आलमी इदारा सेहत www.ho.int
اور نیشنل پبلک ہیلتھ آرگنائزیشن www.eody.gr کے رہنما خطوط سے مشاورت کر کے حقائق کی جانچ پڑتال کرنے کی ضرورت ہے۔ کرونا وائرس سے متعلق تازہ وسائل اور رہنما اصولوں کے بارے میں درست اور سائنسی لحاظ سے ثابت شدہ معلومات کے لیے یہ ادارے انتہائی قابل اعتماد ہیں۔ ہم گھبراتے نہیں، ہم جعلی خبروں کو گھبرانے اور گمراہ کرنے نہیں دیتے۔ ہم اپنے آپ کی زیادہ سے زیادہ دیکھ بھال کریں۔ ہم ہمیشہ سرکاری رہنما خطوط پر مبنی ہوتے ہیں، نہ کہ افواہوں پر۔ ہم خوف کو فتح ہونے نہیں دیں گے۔ محفوظ رہیں۔ Ήταν το Frequently Asked Questions for Migrants, ένα podcast του Solidarity Now σε συνεργασία με την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ και το pod.gr, που δίνει χρήσιμες πληροφορίες σε πρόσφυγες και μετανάστες που ζουν στη χώρα μας. Βρείτε το podcast στην ιστοσελίδα του Solidarity Now, στο pod.gr, στην ιστοσελίδα της ύπατης αρμοστίας help.unhcr.org, Spotify, Apple Podcasts ή όπου ακούς podcast από το کینητό σου. یہ تارکین وطن کے لیے اکثر پوچھے جانے والے سوالات تھے۔ ایک پوڈ کاسٹ سولیدارٹی ناؤ کے اشتراک سے UNHCR اور pod.gr جو یونان میں مقیم مہاجرین اور تارکین وطن کو مفید معلومات فراہم کرتا ہے۔ سولیڈارٹی ناؤ کی ویب سائٹ پوڈ کاسٹ پر UNHCR کی ویب سائٹ help.unhcr.org، اسپوٹیفائی، ایپل پوڈ کاسٹ پر یا جہاں بھی آپ اپنے موبائل فون سے پوڈ کاسٹ سنتے ہیں، پوڈ کاسٹ تلاش کریں۔